अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए भाई, बॉयज प्लीज। पार्ट 3। कमालुद्दीन, कम ऑन द स्टेज। अच्छा, 2 और 3 दोनों हैं, ठीक। तब तो आइए, शाबाश। जी मेरे भाई कमाल। Assalamu alaikum. इस्लाम, whenever you have any doubt, what do you do? I ask my teacher Zakaria sir, and he clears my all doubts. Who teaches you English? Zakaria sir teaches me English, and he is a great teacher of English class. Do you feel good when you speak Arabic? Yes, I feel good when I speak in English because because I speak Arabic because Arabic sorry. Does anyone stand by you in your difficult time? Yes, my parents stand by me my difficult time because they take care me of lot. Why do you cry for someone for no reason? I don't cry for someone no reason because it is waste time. No. Do you offer all salah on time? Yes, offer all salah on time because offering salah is a good thing for a person. Do they disturb you in the class? Yes, they disturb me on the class because they are not good student. Does your teacher scold you? Yes, my teacher has called me when I take a mistake. What makes you happy? I if I speak English with my friends, it makes me happy. ग्रेट, गजब, बहुत बढ़िया तैयारी ब्रदर कमाल, माशाल्लाह। मोहम्मद मुआज। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Who takes care of you a lot? My parents take care of me a lot because they love me a lot. Why do you argue with foolish people? I don't argue with foolish people because it wastes time. How does your teacher teach you English language? My teacher teaches me English very well because he has 10 years experience of English language. Who wins the election every year in your city? Anas wins the election every year in my city because everyone likes him. How do you feel when you attend online class? I feel good when I attend online class because it is an amazing class. Does your teacher clear your doubts? Yes, of course. My teacher clear my all doubts. He motivates us to ask about any doubt. इनक्रेडिबल, बहुत गजब मुआज भाई, क्या Shukran. बात है, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी तैयारी की है। आतिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी आतिफ भाई। Whenever you have any doubt, what do you do? I ask my teacher Zakaria sir whenever I have any doubt, and he is clear my all doubts. How do you feel when you attend online class? I feel happy when I attend online class because it is amazing class. Does anyone teach you English? Yes, of course, Zakaria sir teaches me English because he has 10 years experience in English language.
Who takes care of you a lot? My parents take care me a lot because he love me a lot. Why do you argue with foolish people? I don't argue with foolish people because it wastes time. Who fights with you in the class? No one fights with me in the class because I focus on my work. Incredible. गजब आतिफ. क्या बात है भाई. इंशाल्लाह. फैज. Sir. वालेकुम सलाम जी फैज भाई. Does your brother go to the park for a walk? Yes, my brother go to the park for a walk because uh, walking is a good thing for health. Does your son obey you? Yes, my son obeys me because he's an obedient boy. What makes you happy? If I speak English with my friends, it makes me happy. Why do you cry for someone for no reason? I don't cry for someone for no reason because it wastes time. And why do you argue with foolish people? I don't argue with foolish people because it wastes time. Sorry, sir. Okay. How does a teacher teach you English language? My teacher teaches me English very well because he has 10 years experience of English language. Which mobile do you use? I use a smart mobile because I need to join the class of the TSF. Who wins the election every year in your city? Anas wins the election every year in my city because everyone likes him. Okay. Do you practice daily to learn English faster to improve your communication skills? Yes, of course, I practice daily to learn English faster to improve my communication skills because I want to be a beneficial person to the nation. गजब. Tremendous. बहुत खूबसूरत तैयारी. हमद अब्दुल्ला. Assalamualaikum, sir. So मेरा बेटा हमद. वालेकुम अस्सलाम. Which mobile do you use? I use smart mobile because I want to join Zakaya sir class. How do you feel when you attend online class? I feel good when I attend online class because Zakaya sir teach me very well. Who teaches you English? Zakaya sir teaches me English because he was a good teacher. Do you practice daily to learn English faster to improve your communication skills? Yes, I practice English to learn faster because I want to be a beneficial person to the nation. अब बेटा जोरदार. आतिफ. Okay, you can go आतिफ. Okay, अगला बताइए बेटे. Does anyone stand by you in your difficult time? Yes, my parents stand by me in difficult times because he loves me with my heart. Okay, do you believe in God? Yes, I believe in God. Because he is my creator. Okay, शाबाश. अच्छा है, बहुत बढ़िया. अच्छी तैयारी की. उमर आओ. Assalamu alaikum. राम जी उमर भाई. वालेकुम सलाम. Who fights with you in the class? No one fights me no one fights with me in the class because I focus on my work. Who comes to school daily on time? My brother come to school daily on time because they are a punctual student. He is a punctual student. Does anyone stand by you in your difficult time? Yes, my parents stand me in my difficult time because they loves me. They take care of me a lot. Why do you cry for someone for no reason?
I don't cry for someone for no reason because there is no use for crying someone for no reason. Do you practice daily to learn English faster to improve your communication skills? Yes, of course, I learn English faster. Yes, of course, I practice daily to learn English faster to improve my communication skills because I want to become a beneficial person to the nation. इनक्रेडिबल, गजब बच्चा उमर, माशाल्लाह मेरा बेटा, बहुत गजब तैयारी की बच्चे ने माशाल्लाह। जी मुद्दस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा अस्सलाम। पहला दिन दूसरा याद है, अच्छा, स्कूल दूसरा में है, तोबा था इसलिए नहीं याद कर पाया। तीसरा कोई बात नहीं, जी कोई बात। दूसरा पूछते हैं। डू यू बिलीव इन गॉड? यस ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड बिकॉज ही इज माय क्रिएटर। डज योर सिस्टर डांस? नो माय सिस्टर डजंट डांस बिकॉज dancing uh, is a uh, is a good uh, is a good thing to do. Do you go to Nainital with your friends for hanging about? Yes, my friend. Yes, I go to Nainital with my friends for hanging about because I love traveling. Do you learn English from Zakaria, sir? Yes, of course, I learn English from Zakaria sir because uh, I want to improve my communication skills. बहुत बढ़िया मुद्दस्सिर, शाबाश, अच्छा है बाबू, बहुत बढ़िया, ऐसी मेहनत जारी रखो। नूर भाई आओ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे अजीज। सर थोड़ा मैं बिजी था 2-3 दिन से, तो मैं थोड़ा पढ़ाई तो ऐसे भी मैं नहीं कर पाया। तो ओ, मैं दे देगा अपने से। देख लेना बाबू, फिर वीडियो है ना, तैयारी कर लेना इसकी। हाँ वो तो देख लेगा सर, क्योंकि थोड़ा 2 दिन से थोड़ा बिजी था सर, थोड़ा काम वाम में, तो इसलिए कुछ मैं सेंटेंस पढ़ पूछूं नहीं आपसे? पाया। हाँ पूछिए पूछिए सर, जितना होगा बताएगा। Has your teacher scolded you? यस, माय टीचर has called me when I make mistake. शाबाश। Do you exercise daily in the gym? Yes, I exercise daily in the gym because exercise is very good things for health. Who fights with you in the class? Sometimes my friends fights with me in the class because he want to many times treat with me. माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा है बाबू। थोड़ा सा वक्त निकाल के जरूर देखना मेरे जी, किसी वक्त और मौका मिलेगा ना, मैं बीच में से आपको सवालात पूछता हूँ, है ना, इंशाल्लाह। अच्छा है ब्रदर नूर जी। कौन है भाई? मोहम्मद अमन, आइए मेरा बेटा अमन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। हाँ बेटे। सर मैं 2 पार्ट के याद करवाए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं स्कूल गया था इसलिए। कोई बात नहीं बेटे, आप जो कहेंगे वो पूछूंगा, बताओ कौन सा पूछूं, पार्ट 2? यस सर। ठीक है बेटे, पार्ट 2 पूछेंगे आपसे। डू यू बिलीव इन गॉड? यस आई बिलीव इन गॉड बिकॉज ही इज माय क्रिएटर। क्या बात है भाई। अगला बताओ बेटे। डू यू स्टडी एट नाइट? यस आई स्टडी एट नाइट बिकॉज बिकॉज आई वांट टू बी बड़ा पर्सन इन माय लाइफ। because a successful person in my life. ठीक है। ओके, डू यू टेक टी डेली? No, no, I do not take tea daily because tea is harmful for health. माशाल्लाह। डू यू हेल्प पुअर पीपल?
Yes, of course. I help poor people because help is a good thing. माशाल्लाह, बहुत बढ़िया मेरा बेटा, बहुत अच्छा बच्चा। देखो भी अमन, ये बहुत बढ़िया, जोरदार, माशाल्लाह। हाँ भाई, कोई रहा तो नहीं बॉयज में से? आप लोगों में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मतलब दिक्कत मतलब ये कि किसी चीज को समझने में या कोई दुश्वारी ऐसी तो नहीं है? कल का जो आपका टॉपिक है मालूम है ना, उस टॉपिक में असल में कुछ सेंटेंस रिपीटेड हैं, रिपीट हैं बाबू, ठीक है? तो जो रिपीट है उनको याद मत करना। मतलब रिपीट का मतलब ये कि भैया जो वहां बोल दी वो बाद में नहीं बोलने, बस। ठीक है मेरे भाई? जी। उसमें कुछ सेंटेंस रिपीट हैं, पता नहीं किस तरह हो गए, मुझे भी समझ में नहीं आया। मुझे तो जब बच्चों ने बताया तब समझ में, भाई यार अच्छा ये रिपीट हो गए, पब्लिश होने के बाद पता चला। ब्रदर खुर्शीद को बुलाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी सर, बहुत, थोड़ा देर हो गई ज्वाइन करने। कोई बात नहीं। जी। वाई पार्ट नंबर 3 किया बाबू, पार्ट 3। सर पार्ट 1 2 मैंने देखा था, मैं भी थोड़ा ऑफिस टाइम में बिजी रह जाता। शाबाश शाबाश। डू यू बिलीव इन गॉड? यस आई बिलीव इन गॉड बिकॉज ही इज माय क्रिएटर। डू यू टेक टी डेली? नो आई डोंट टेक टी डेली बिकॉज आई लाइक कॉफी। Do you go to Nainital with your friends for hanging about? यस आई गो टू द नैनीताल with my friend for hanging about because I love traveling. Do you offer all salah on time? Yes, Alhamdulillah, I offer all salah on time because offers salah on time is a good thing for a person. Who comes to school daily on time? Sorry, sir. Who comes to school daily on time? My brother comes to the school daily on time because he is a very punctual student. Mashallah. Does your son obey you? Yes, my son obey you because he is obedient boy. Correct. बहुत बढ़िया ब्रदर खुर्शीद, बहुत अच्छी तैयारी की। देखो नीचे से उनको बुलाइए, मोहम्मद यासीन को, सेकंड लास्ट। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई साहब, क्या मुश्किल है मोहम्मद? कुछ दूसरा पूछना। सेकंड वाला पूछना पड़ेगा, ओके। What makes you happy? If I with my friends, it makes me happy. Okay. Does a teacher scold you? Yes, my teacher calls me when I make a mistake. Do you help poor people? Yes, I help poor people because helping is a good thing. Do you learn English from Zakaria, sir? Yes, I learn English from the creator because I want to improve my communication skills. Does your brother go to the park for a walk? Yes, my brother go to the park for a walk because walking is a good thing for health. अरे मेरा बेटा बहुत प्यारा बच्चा भाई यासीन, माशाल्लाह गजब। इनके अब्बा से कह के इनका राशन बढ़वाऊंगा बेटे, हैं? बहुत प्यारा बच्चा है। चलो शाबाश। जी। हाँ भाई, तो बच्चियां हैं सब। देखो उनको, अली हसन को बुलाइए। अली हसन आइए। आपने कौन सा पार्ट किया है? पार्ट 3? दूसरा पाठ किया सर। आज अंजुमन थी मदरसे में, तैयारी नहीं कर सका, मगरिब के बाद तैयारी करता हूँ। ओ ये बात, चलिए बाबू कर लेना है। जी। आप रहीम को बुलाइए। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, डज योर सन ओबे यू? My son obeys me. He is a punctual student. हम्म। So, sir,
ये आप कहाँ पे खड़े हो बाबू? डॉक्टर साहब के चैम्बर में था। कहाँ, पहाड़ों पे? डॉक्टर साहब के चैम्बर में। अच्छा, ये बात ठीक है। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। हु फाइट्स विद यू इन द क्लास? No fights with me in the class because I focus on my work. डू यू टेक अ बाथ डेली इन समर? I take bath daily in summer because I like cleanliness. डज योर टीचर स्कॉल्ड यू? Yes, my teacher scolds me because when I make mistakes. डू यू हेल्प पुअर पीपल? Yes, of course, I help for people because helping others is a good thing for a person. बहुत बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा सुनाया। अच्छा, हाँ भाई बच्चों, टॉपिक तो लाना मेरे बच्चों आपको, है ना, पता है ना? अच्छा, एक दो बात सुन लो जरा। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका ताल्लुक इंसान के अखलाक और इंसान की जो एक पर्सनैलिटी ना, उससे होता है। बहुत सी चीजें इंसान की पर्सनैलिटी को उठा देती हैं, और वही बहुत सारी चीजें इंसान की पर्सनैलिटी को नीचे बना देती। तो मैं चाहता हूँ कि एक दो पॉइंट्स आपके सामने मैं ऐसे बताऊं, जो आप अगर उनको करते हो तो ना करें, और अगर पहले से ही ना करते हैं, वेल एंड गुड। पहली बात, आपको अगर कभी नज़ला वगैरह हो, जो होता तो होगा, मुझे तो होता है, तो नज़ला अगर कभी हो आपको, तो मैंने बहुत सारे लोगों को एक चीज करते हुए देखा है। पता है क्या? वो ये करते हैं कि आपके पास बैठे हैं, वो उनको छींक वगैरह जो भी आया, वो तो एक नेचुरल है छींक वगैरह का आ जाना। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ये करते हुए देखा है कि वो कसदन कोई टिश्यू वगैरह या निकालते हैं, और नाक को वहीं पे अच्छे से साफ करते हैं, मतलब जोर लगा कर निकालते हैं। एब्सोल्युटली ऑकवर्ड, मतलब बहुत गंदा लगता है। ठीक है, ये बेसलीकेमंदी होती है बेटा, ये कभी मत करना आप। ये किताब में लिखा हुआ नहीं है कहीं। ये आपको वही बंदा बता सकता है जो कुछ ऐसे लोगों के यहाँ रहकर आया हो कि जो खुद सलीकेमंद हो। ठीक है, तो कभी ये मत करना बेटे। करना क्या है? अच्छा, जब आपकी नोजी आएगी तो करना क्या है सर? उसे निकालना तो रहता है। कभी कभी मजलिस में बैठा बंदा नजले की हालत में, उसका तरीका क्या? देखो मेरी तरफ देखो, टिश्यू लिया आपने, अपने यहाँ रखा, और हल्का सा इसको सिर्फ दबा दिया आपने, सिर्फ दबा दीजिए। चाहे आपको हर मिनट में ये एक्शन करना पड़े, यहां से निकाल के मत लाना पीछे से। समझ में आ गई बात? ये बहुत खराब लगता है, वो मत करिएगा प्लीज। ठीक है बेटे, ये सलीकेमंदी की बात बता रहा हूँ, ये कहीं तुमने शायद पढ़ा भी नहीं होगा अभी तक किसी किताब में, और बहुत हो सकता है बहुत सारों ने नहीं बताया हो। अच्छा, बताएगा जिस इंसान को खुद को नहीं पता वो बताएगा क्या? बहुत सारे टीचर्स हैं वो क्लास में ही धड़ल्ले से करते हैं। एक बात इसका ख्याल रखिएगा आप कि आपको ऐसे नहीं करना है। इसी तरीके से कभी अगर आपको बोलने का मौका मिले, जैसे माइक है, आपका ही माइक है, मेरा माइक है, ऐसे मुझे खांसी आ रही है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब इतना जोरदार अंदाज में जितनी खांसी आ रही है, सब आपको सुना रहा हूं मैं। अगर ये वाली सिचुएशन आपके साथ कहीं माइक पर आ जाए, तो फिर क्या करना है? देखो, ये हाथ यहाँ लगाइए आप, ताकि आपके जो साउंड है ना वो कट जाए। ये जो आपका माइक है यहाँ नहीं आना चाहिए। आप मेरे सामने आए, आपको फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ हो रहा है, माइक बंद कर दीजिए, मैं दोबारा अलाउ कर दूंगा आपको। आप माइक ऑफ कर देंगे अपना, मैं फिर से अलाउ कर दूंगा। बहुत सारे लोग, उनको अगर खांसी आती है तो वो माइक की खिदमत में पेश कर देते हैं और सबको बरकतें देते हैं दबा के। ये नहीं करना बेटा आपको। ठीक है, एक बार ये ख्याल रखिएगा। अगली बात, वो तो बस क्या बताऊं कैसी लगती है मुझे यार। बताया तो चलो। होता ही है कभी कभी
कि और ये फितरत है इंसान की, जब अच्छा खाना होता है ना, डिलीशियस, तो बंदा थोड़ा सा ज्यादा खा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे की एक खुराक है 2 चपातीज खाने की, लेकिन उसने देखा कि भाई डिश जो है बड़े अच्छे से बनी हुई है, उसने थोड़ी सी बिरयानी भी ले ली और साथ में 2 चपातीज भी उसने खा ली, तो क्वांटिटी तो बढ़ गई। अच्छा, ये वाली बात उस वक्त ज्यादा अजीब लगती है जब आप किसी दूसरे के दस्तरखान पे होते हैं। तो अब आप दस्तरखान पे दूसरे के हैं और डगा ले रहे हैं आ करके, मतलब इतना अजीब लगता है ना यार। बहुत सारे लोगों को देखा है कि दूसरे के दस्तरखान पे इतनी तगड़ी तगड़ी डगारे लेते हैं कि बाहर चलते हुए भी कोई जानवर हो तो डर के भाग ले हो, इतनी खतरनाक। अबे यार भैया, क्या है ये? आपको अगर डकार आ रही है, उसकी जरूरत है, आप मुंह बंद करके लीजिए भाई साहब, मुंह बंद करके। और मैंने बड़े बड़े अच्छे लोगों को देखा ये करते हुए। भाई बेसलीकेमंदी है, सच में है, और कहीं किताब में नहीं लिख रही है, ये जो बता रहा हूं आपको। आपकी इमेज पे हल फौरन वो आ जाएगा अजीब सा, भाई यार ये तो बड़ा अजीब लड़की दिखे, अजीब सा लड़का भाई ये तो, इसे सलीके नहीं है। उमूमन जब होता है, जब इंसान कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेता है खाने के बाद, तो फितरी तौर पे अंदर से डकार वगैरह का निजाम अल्लाह ने बनाया, वो जरूरी भी है, लेकिन उसका तरीका है, वो यही है कि आप मुंह बंद करके डकार लें। मैं सच बताऊं, मैं टोक देता हूँ अगर कोई मेरे सामने कर, लेकिन टोकने का अंदाज थोड़ा सा वो रहता है। अगर कोई मेरे सामने करता हूँ, उसके कहता है माशाल्लाह, लग रहा है महीनों बाद खाना खाया भाई ने। तो उसे लगता है भाई यार कुछ क्या कैसे रही है, तो और क्या कहूँ, उससे ये कहा जाएगा महीनों बाद खाना खाया मेरे भैया। तो इसलिए इसका आप ख्याल रखिए, ठीक है? वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज और आप थोड़ा सा फोकस करना है इस पे। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं, बच्चियां भी, बेटे बच्चियां आप तो खास कर, बच्चियां खास कर, जब हम कोई काम करते हैं ना बेटा, तो हमारे जिस्म से ऑटोमेटिकली ना पसीना निकलता है। वो फितरत है, वो निकलना जरूरी है। किसी को पसीना नहीं आता हो तो पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां लग जाएं उसको। तो पसीने का निकलना जरूरी है। अब आपका पसीना निकला और आप वही कपड़े पहने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं चले गए, आप किसी ऑफिस में गए या वहां गए, इंतहाई बैड इम्पैक्ट छोड़ कर जाओगे आप, इंतहाई बैड इम्पैक्ट। मेरे ऑफलाइन में बच्चे और बच्चियां आती, मैं उनके चुका आसपास घूमता हूँ। मैंने उनको ये कह रखा, अगर किसी दिन बगैर नहाए आ गए हो ना, किसी भी दिन, तो यहीं खड़े खड़े बाल्टियां मंगवा कर डलवाऊंगा तुम्हारे को। तो बच्चियां भी जो आती हैं, वो सब बढ़िया से, उनके अंदर से खुशबू आती भले हो, लेकिन किसी के अंदर से वो नहीं आ सकती, कराहत वाली वो। ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है? देखो, गर्मी अगर हो तो क्या हुआ, नहाने में कोई पैसे जा रहे हैं क्या बेटे? सफाई रखा करो अपनी, ठीक है? आपके अंदर से ना बू नहीं आनी चाहिए, खुशबू नहीं आ रही तो बू नहीं आनी चाहिए, ठीक है? जो बच्चा इसका वो रखता है, और मैं बच्चियों से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बेचारी घर पे काम वाम ये सब करती रहती हैं, ठीक है? उनका रहता है खाना बनाया तब पसीना आ गया उनको, ये वो सब। तो जो मेरे करीबी होती हैं लड़कियां, मतलब जैसे आसपास के हमारे खाला वगैरह की, मैं तो कह देता हूँ उनसे, मैं कहा भैया नहावा ले जाकर जा। ये बोले नहीं भाई अभी वो काम किया था इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं सच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो मतलब मेरा अंदाज थोड़ा सा पोलाइट सा होता है, तब मैं यूं नहीं कहता कितनी बदबू आ रही तेरे अंदर से भाई, पता नहीं, ये नहीं। थोड़ा सा अंदाज हल्का सा नरम सा रखा जाए, ठीक है? तो ये मैंने इसलिए बताई आपको बात कि बहुत से लोग, अच्छा, जो यहाँ पर हमारे बॉयज बैठे हैं, आप काम पे गए, ऑफिस से आए, अब आपके अंदर से बू तो आ रही है, लेकिन आप नमाज पढ़ने चले गए उन्हीं कपड़ों में, उसी बू के साथ। भाई मुझ जैसे इंसान, मैं तो नियत तोड़ना गवारा कर लेता हूँ कि दूसरी जगह पढ़ूंगा जाके। पढ़ी नहीं जाती नमाज। इंसान ऐसी जगह पढ़ता है ना जहाँ उसको सुकून से मिल रहा हो, अल्लाह पाक को वो कर रहा है वो, अब वहीं पे अजीब सा सीन हो जाए क्रिएट। तो हालांकि मैं कभी नियत वियत नहीं तोड़ी, एक वैसी बात बता रहा हूँ, मैं प्रेफर ये करना चाहता जी कि कहीं और जाके खड़े होकर नमाज पढ़ ली जाए। ये चीजें हैं तो बड़ी छोटी, लेकिन बहुत अहम है, ये आप अपनाया करो आप, ठीक है? नहाने की आदत बार बार होनी चाहिए आपकी। बहुत सारे लोग होते हैं यार, सच में उनको नहाने से बड़ा डर लगता है, नहाते नहीं वो। ओ भैया, क्यों नहीं नहा रहे? तो ये अपनी सफाई इंतहाई जरूरी है आपकी, ठीक है? इसी तरीके से कभी कभी होता ही है कि हमारा जो मुंह है ना, इसमें से बू आती है।
उसके कई सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स बताते हैं, कई मेरे दोस्त भी हैं डॉक्टर डेंटिस्ट, तो उन्होंने भी एक दो ने बताया कि या तो कोई दांत वांत खराब हो जाता है तब आती है, या फिर पेट के अंदर कुछ गड़बड़ है, आपके मैदा वगैरह खराब है, जो भी है, इस तरह से आती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप जब किसी से बात करें तो बिल्कुल मुंह से मुंह लगा के करें, ताकि वो सारी बरकतें लें आपकी, है ना। और भैया इतना डिस्टेंस रखना कि हवा पास होती रहे। बहुत सारे लोग होते हैं वो बड़ी पास में आके बात करते हैं, तो पास में नहीं करनी है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए बात करने में, क्योंकि वो अच्छा रहता है। मतलब ये बहुत, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, ये बड़े मतलब कैसे कहेंगे इसको, ये मतलब सलीकेमंदी से है इसका ताल्लुक, सब सलीकेमंदी से इसका ताल्लुक है, ठीक है भाई। तो किसी से आप बात करें तो आपका यही अंदाज होना चाहिए। आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी काफी है, पॉइंट्स तो 50 हैं आगे, इतने पे अमल कर लेना मेरा बेटा, फिर कभी और मौका मिलेगा तो और बताएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा है। हाँ भाई, खदीजा बेटे क्या कह रहे हैं? सलामकुम सर। मेरी बेटी, वालेकुम सलाम। सर मैं आपका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किस सर बात जब पे? से मैं सर जब से मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की है ना, एक तो पहले मेरे अंदर बहुत डर बैठा रहता था, मैं बोल नहीं पाऊंगी, ये नहीं कर पाऊंगी, ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब से आपकी एक्टिविटीज हैं, जैसे क्वेश्चन पूछना और टॉपिक्स याद करके आना, क्लास में बोलना, इन सब ने मतलब मुझे इतना मोटिवेट करा है कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी फ्लुएंट हो गई है और मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। आज मुझे ऐसे एहसास हुआ, मेरी टीचर्स भी बोल रही थी कि तुमने पहले से ज्यादा बहुत इम्प्रूव किया है, बोलने में, लिखने में, हर चीज में। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। समझ एक्चुअल इसकी मतलब कहाँ से ये सब आ रहा है इम्प्रूवमेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत बड़ी बनेगी हमारी खदीजा, इंशाल्लाह, है बेटे। शाबाश। और इस्लाम की दाई बनेगी इंशाल्लाह। ओके, बुलाओ भाई खुशबू, कम ऑन द स्टेज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस बेटी। सलाम। सर कल का जो टॉपिक है वो थोड़ा हार्ड है सर, हाफ हाफ नहीं सुन सकते आप? सर पता नहीं क्या हुआ, अब हमें याद नहीं हो रहा। अच्छा ठीक, चलो गौर करते हैं, ठीक है बेटे। ठीक है, अच्छी बच्ची। हंसा, कम ऑन द स्टेज, चेयरमैन ऑफ 9 PM। सलामकुम सर। सलाम जी। सर सेम वही मेरा भी क्वेश्चन था। सेम आपका भी था, चलिए गौर करेंगे फिर इंशाल्लाह, है। सर मतलब सर जी। थोड़ा तो याद हो गया, लेकिन मतलब आधे पे जाके फिर भूल जा रहे हैं कि सीरियल वाइज नहीं याद रह रहा किसके बाद कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है बेटे, अच्छी बात। आरिफ आओ, आरिफ। हम्म। सलाम वालेकुम सर। जी भाई। सलाम। सर सॉरी, मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था, काम करने में बहुत बिजी था, क्योंकि मैं मजदूरी करता हूँ सर। अल्लाह पाक तुम्हें अच्छा सा बिजनेस दे, खूब बड़ा बनाए जिंदगी में, आपकी जिंदगी को खुशियों से भरे अल्लाह पाक। सर बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग फील हो रहा है, सुना नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेहनत करो, ईमानदारी से करो, अल्लाह पाक से मांगो, ठीक है। वो रब इतना बड़ा है, आपको बादशाह बना सकता है दुनिया का वो, ठीक है। इससे उससे मांगो, खूब मांगो उससे, उसे अच्छा लगता है वो बंदा जो मांगता है उससे। आयशा बेटी आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। सर मतलब आपकी जब से क्लास ली है तब से मतलब बहुत कुछ याद हो गया। पहले मतलब बेसिक भी याद नहीं था इंग्लिश का, पर आता सब कुछ है। मन में ऐसा लगता है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है अगर हिंदी में बोला है तो इंग्लिश में पूरा आता है, पर बोलने में हेजिटेट होता है और ऐसा लगता है कि कहीं गलत नहीं निकल जाए। पर मैं ट्रांसलेट करती हूँ गूगल से तो पूरा करेक्ट सही निकलता है। माशाल्लाह, अच्छा बेटी, आप तो बहुत इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो देखिए आ गए गजब, आप आपके मॉडल शुरू होने वाले हैं, नई दुनिया आपकी, इतना मजा आएगा वहां आपको कि भाई साहब, अच्छी सी बिरयानी में भी इतना मजा नहीं आएगा। शाहनवाज आओ बाबू। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई। सर मुझे एक सलाह चाहिए। हाँ बाबू, बताओ बताओ, शाबाश। सर अब 2-3 दिन से सफर कर रहे हैं, लेकिन सफर में तो कोई कुछ काम नहीं करता, लेकिन क्या है कि हम ना मतलब
इंग्लिश क्लासेस जो हो रही है ना उस टाइम हम पढ़ भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि दिल इस पे तवज्जो नहीं दिला पा रहे हैं हम। असल में सफर एक क्या ऐसी है चीज, कि हाँ। मैं समझ गया आपकी बात। हम्म, सफर एक ऐसी चीज है बाबू, उसमें दिमाग इंसान का सुकून में नहीं रहता है, एक जगह स्टे नहीं करता है, इसलिए आप फोकस नहीं कर सकते सफर में किसी भी चीज पे। ये साइकोलॉजी कहती है भाई साहब। आपने सही किया, सवाल अच्छा। किया, औरों को पता चल गया। नहीं तो तो क्या टेंशन है ना। सर कि अभी क्या है कि खराब लगता है कि कुछ सुना नहीं पाए या बोलने, हालांकि बता पाते हैं, लेकिन क्या है कि अंदर से गवाही नहीं दिया कि बोले बोले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं आया। एक दो दिन की बात है, हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान मत हो। अली हसन। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। जी सर, ये है कि पहले 2 मंथ जो है ना, मेरा जो टाइम टेबल है वो मैच नहीं हो रहा था यहाँ मदरसे के हिसाब से, तो मैं उसको रिकॉर्डिंग सेशन देखा करता था वीडियो। तो पिछली जो ताल्लुक से, असबाक हैं। हाँ वो मुझे पर्सनल पे बताना बाबू, ठीक है? मैं 110% आपका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है बाबू? इंशाल्लाह। आओ नशरा बेटे। ये मेरी बेटी जो नशरा है ना, इसे पता चलता है कि सर नाराज हैं तो राजी करने आ जाती है, बोल रही लेकिन अब नाराज नहीं हो बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप हंसते ही अच्छे लगते हो। शुक्रन आप शुक्रन। हमेशा हंसे इंशाल्लाह, हमेशा ऐसे ही हंसेंगे इंशाल्लाह। आमीन। अज़हकल्लाहु सिन्नक अयज़न। अच्छा बेटे, माशाल्लाह। वारिस, आओ सर बेटे। हाँ बेटी, कुछ कह रही मेरी बेटी? व्हाट्सएप पे बताइएगा, हैं? शाबाश, अच्छी बच्ची। वारिस। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। यस बेटी, शाबाश। सर मेरा भी वही क्वेश्चन है, खंसा सिस्टर ने जो बोला है सर, याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहा है सारा। हाँ बच्चों, एक काम करते हैं फिर बेटा, यस सर। ये वाला टॉपिक तुम्हारा अगले हफ्ते डाल देता हूँ फिर मैं, ठीक है? तभी याद करके ले आओ सही से। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, जब तुम लोगों को याद नहीं होगा बेटे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं चाहता हूँ तुम्हारी ट्रॉफी का क्यों नुकसान हो यार, तो सर है कल ना? क्या सुनाएंगे? हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों। कल हम एक कोई अलग एक्टिविटी करा देंगे क्लास में, ठीक है? हाँ मेरा बेटा, ये आप टॉपिक अगले वाले फ्राइडे के लिए इंतजार करो, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों? अच्छा है, शाबाश, तुम लोगों की बात मानी मैंने, देखो।